السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے ان حالتوں کے متعلق جن میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایک مسلمان روزہ چھوڑ سکتا ہے، چونکہ بعض مسلمان مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی بیماری پر چھوٹی بیماری کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور گناہ گار بن جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی کے متعلق جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو کوئی مہینہ پالے رمضان کا تو چاہیے کہ اسے روزہ رکھے، اور اگر کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو پھر وہ ان روزوں کو دوسرے دنوں میں مکمل کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کے لیے ایک رخصت دی، وہ یہ کہ اگر کوئی سفر کر رہا ہو یا کوئی بیمار ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی، اور پھر چھوڑنے کے بعد وہ غیر رمضان میں جب سفر سے واپس آئے گا اور جب مریض اچھا ہوگا تو پھر ان روزوں کی وہ قضا کرے گا۔ تو عزیزان محترم، اب احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے، جیسا کہ امام بخاری نے روایت کی ایک حدیث نمبر 1943، اس میں حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، قال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے انہوں نے عرض کی، اصوم فی السفر، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، وکان کثیر الصیام، اور وہ جو ہے زیادہ روزے رکھنے والے تھے، حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی۔ فقال، تو حضور نے فرمایا، ان شئت فصم وان شئت فافطر، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے اور روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی مسافر کو۔ ہاں، اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے سفر میں تو بھی وہ رکھ سکتا ہے، جیسا کہ بخاری ہی کی حدیث میں امام بخاری نے 1945 نمبر حدیث ذکر کی، اور اس میں جو ہے آپ نے یہ ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت سفر میں روزہ رکھا ہے۔ محترم سامعین، آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ ان دونوں میں مسافر کے لیے رخصت ہے اور مریض کے لیے بھی رخصت ہے۔ آئیں، ان کے علاوہ اور کوئی حالت ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت شریعت کی طرف سے ملتی ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک حوالے کے ذریعے پیش کروں، یہ ہے رد المحتار۔ اس میں جو ہے امام ابن عابدین شامی علیہ رحمہ ایک باب باندھتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب رد المحتار کی جلد دوم میں یہ باب باندھا، فصل فی العوارض المبیحۃ لعدم الصوم، یہ فصل ہے ان عوارضات کے بیان میں جو روزے کو چھوڑنے پر مباح کرتی ہے، روزے کو چھوڑنے میں جو چیز جو مباح کرتی ہے اس کے متعلق۔ اور آپ نے یہاں پر تقریباً 4 یا 5 حالتیں آپ نے ذکر کی۔ لمسافر، ایک مسافر کے متعلق آپ نے ذکر کیا، او حامل، حاملہ عورت، او مرضع، دودھ پلانے والی عورت، خافت بغلبۃ الظن علی نفسها او ولدها، جبکہ اسے غلبہ زن ہو اپنی جان پر یا اپنے بچے کی جان پر، او مریض، یا ایسا مریض، خافت زیادتا، جو مرض کی زیادتی ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ تو محترم سامعین، یہاں پر تقریباً امام ابن عابدین شامی نے 4 یا 5 وجوہات بیان کی جن کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر انہوں نے مسافر کا ذکر کیا اور دودھ پلانے والی عورت کا ذکر کیا اور حاملہ عورت جو حمل سے رہتی ہے اس کا ذکر کیا اور مریض کا ذکر کیا۔ اب مسافر سے کیا مراد ہے؟ تو مسافر سے خود یہاں پر امام ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ مسافر سے مراد سفر شرعی ہے، جس کو آج اگر ہم سمجھیں تو 92 کلومیٹر سے زیادہ جو انسان سفر کرے، اس سے زیادہ کلومیٹر جو جائے
وہ हालत सफ़र में होता है, वो मुसाफिर होता है शरीयत की रूह से, तो उसके लिए 4 की जगह 2 रकात नमाजें हो जाती हैं और रोज़े भी उसके लिए मुआफ़ हो जाते हैं। अब हर एक की मैं आपके सामने तशरीह पेश करूं, जैसे कि मुसाफिर की तशरीह ये है कि वो सफ़र शरई मुराद है। अब फिर हर एक की तशरीह खुद इमाम इब्न आबिदीन शामी अपनी किताब में पेश करते हैं और फरमाते हैं कि हामिला यानी वो औरत जो हमल से हो, या मुर्दिया जो दूध पिलाने वाली हो, तो इनके बारे में क्या है, ये चूंकि औरतों के साथ खास है और औरतों ही के मुतालिक ये उन्होंने जिक्र किया कि अगर हामिला औरत जो उम्मीद से है, उसे ये खौफ हो कि अगर मैं रोज़ा रखूंगी तो मेरी जान को ख़तरा है या मेरे बच्चे की जान को ख़तरा है, तो शरीयत उसे इजाज़त देती है कि वो रोज़ा छोड़ दे। और इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत कि अगर वो ये खौफ करती है कि मैं अगर रोज़ा रखूंगी तो दूध खुश्क हो जाएगा और बच्चा जो है भूख से बीमार पड़ जाएगा, बच्चा भूख से मर जाएगा, तो फिर इसके लिए भी शरीयत ने इजाज़त दिया है कि ये रोज़ा छोड़ सकती है। और फिर रहा मरीज़ का मसला, तो मरीज़ का भी यही मसला है कि अगर उसे ये खौफ हो कि मर्ज़ में ज़्यादती होगी और मर्ज़ बढ़ जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि उसकी जान चली जाएगी, तो फिर ऐसे मुसाफिर को शरीयत, ऐसे मरीज़ को शरीयत इजाज़त देती है कि वो रोज़ा छोड़े और जब सेहत याबी हो तो फिर दूसरे दिनों में वो रोज़ा रख सकता है। अब इसी मरीज़ की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि बि इखबारी तबीबिन हादिकिन मुस्लिमिन, आपने कहा कि मरीज से मुराद क्या है कि मरीज को ऐसे डॉक्टर ने इजाजत दी हो जो मुसलमान हो और जो माहिर डॉक्टर हो, उस डॉक्टर ने अगर मरीज को इजाजत दी है कि अगर तुम रोजा रखोगे तो तुम्हारे मर्ज में ज्यादती होगी, इस तरह अगर उसने कहा है और कहा है कि रोजा तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मरीज रोजा छोड़ सकता है। छोटी छोटी बीमारियों पर, थोड़ी सी बुखार पर, थोड़े से जुकाम पर और इस तरीके की छोटी छोटी बीमारियों पर रोजा छोड़ने की शरीयत में हरगिज इजाजत नहीं है। उसी बीमारी में रोजा छोड़ने की इजाजत है जहां पर बीमारी बढ़ने का खौफ हो या जो है जान जाने का खौफ हो। अब तबीबों के बारे में जो आजकल हालात तबीबों के चल रहे हैं, उसके बारे में बहारे शरीयत में मुफ्ती अमजद अली आजमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि तबीबों का हाल क्या है। कहते हैं कि आजकल के अक्सर अतिब्बा अगर काफिर नहीं तो फासिक जरूर है और न सही तो हाजिर तबीब फी जमान ही नायाब से हो रहे हैं। उन लोगों का कहना कुछ काबिले एतबार नहीं, न उनके कहने पर रोजा इफ्तार किया जाए। इन तबीबों को देखा जाता है कि जरा जरा सी बीमारी में रोजा को मना कर देते हैं, इतनी भी तमीज नहीं रखते कि किस मर्ज में रोजा मुजिर है किस में नहीं। तो इन्होंने तबीबों का हाल बता दिया कि आज हर कोई छोटा सा छोटा डॉक्टर भी ये कहता है कि अगर आप रोजा रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इस तरीके की जो बातें करके मुसलमानों को रोजा छुड़ाते हैं, तो फिर उनकी बातों का एतबार नहीं होगा। वो जो माहिर डॉक्टर है, जब वो बोलेगा और वो मुसलमान होगा, तब जाके उसकी बात को माना जाएगा और उसके बाद शरीयत आपको इजाजत देगी कि आप रोजा छोड़ सकते हैं। अब डॉक्टर्स के बारे में, चूंकि अक्सर हजरात कहते हैं कि इस जमाने में मुसलमान डॉक्टर्स बहुत कम है, अक्सर जो है काफिर डॉक्टर होते हैं, गैर मुस्लिम डॉक्टर होते हैं, तो फिर क्या उनकी बात का एतबार होगा? क्या वो अगर कहेंगे तो मुसलमान को रोजा छोड़ने की इजाजत होगी? तो आए उसको भी मैं आपके सामने एक हवाले के जरिए हल कर दूं। ये है मजलिस शरई के फैसले। जदीद मसाइल को जिक्र करते हुए यहाँ पर उसी मसले को जिक्र किया कि तबीब के लिए इस्लाम और तकवा की शर्त, चूंकि पहले ज़माने में ये शर्त ज़रूरी थी और इस ज़माने में इसमें कुछ तखफीफ और कुछ कमी आ गई है। यहाँ पर इसका खुलासा करते हुए इन्होंने कहा कि एक इलाज है खारजी इलाज और एक है दाखिली इलाज। खारजी इलाज जैसे जोड़ों की मालिश वगैरह, जिसमें वो कोई तिब्बी खियानत व बदखाही न कर सके, और दाखिली इलाज जिसमें तिब्बी खियानत व बदखाही की गुंजाइश है।
तो अब दो तरीके का इलाज हुआ, एक ऊपर ऊपर से जो किया जाता है वो इलाज, और एक जो है अंदरूनी इलाज। अब खारजी इलाज में गैर मुस्लिम से मुतलकन जायज़ है, खारजी इलाज गैर मुस्लिम डॉक्टर से मुतलकन आप करा सकते हैं, जैसे उससे खरीदो फरोख्त जायज़ है, इसी तरह आप इलाज भी करा सकते हैं। अब दाखिली इलाज के लिए यहाँ पर शर्त लगाई गई कि माहौल फसादात का ना हो, और वो डॉक्टर तासुब यानी मुसलमानों से नफरत करने वाला ना हो, और ये तमाम शराइत के बाद आपने कहा कि लेकिन दीनदार तबीब की सख्त कामयाबी और हर्ज शदीद की वजह से अब फासिक और काफिर तबीब से इलाज की इजाजत है, बशर्ते के तहर्री के बाद मरीज का दिल इस बात पर जमे कि ये तबीब खामखा कोई ऐसा इलाज तजवीज नहीं करता जिसके बाइस एक मुसलमान को किसी हराम का इर्तिकाब करना पड़े। और जब फासिक हाजिक मुस्लिम तबीब मिले तो गैर मुस्लिम के इलाज से परहेज करें। यानी खुलासा ये है कि अगर कोई मुसलमान डॉक्टर मौजूद हो तो सिर्फ और सिर्फ उसी मुसलमान डॉक्टर से इलाज कराएं, और उसी के कहने पर, और वो भी माहिर होना चाहिए, उसी के कहने पर आप रोजा छोड़ सकते हैं। अगर मुसलमान डॉक्टर के होते हुए आपने किसी गैर मुस्लिम से इलाज कराया और उसके कहने पर रोजा छोड़ा तो फिर आपका ये रोजा छोड़ना काबिल कबूल नहीं होगा। हाँ, अगर कोई काफिर डॉक्टर से इलाज करा रहा है और वो काफिर डॉक्टर जो है मुसलमानों से मोहब्बत करने वाला है, नफरत करने वाला नहीं है, और वो हमारा अच्छा चाहने वाला है, तो फिर उसकी बात का भी एतबार होगा, और फिर ये तहरी करेगा, उसके बोलने के बाद फिर ये गौर व फिक्र करेगा कि क्या वाकई में ये जो डॉक्टर कह रहा है ये सच है। जब जाके अगर इसका जहन जमे इस बात पर, इसका ख्याल इस बात पर जम जाए कि वाकई में ये सच कह रहा है, तो फिर उसके बाद इसे रोजा छोड़ने की इजाजत होगी। आखिर में एक मसला औरतों के मुतालिक मैं जिक्र कर दूं, जो उनके मखसूस अय्याम होते हैं, जो महीने में अय्याम होते हैं, उनमें भी उन्हें रोजा छोड़ने की इजाजत है। अगर कोई औरत रोजे से थी और रोजे के दरमियान नापाक हो गई तो फिर उसका रोजा टूट जाएगा। जैसे कि इसी किताब बहारे शरीयत में मुफ्ती अमजद अली आजमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि औरत को जब हैज व निफास आ गया तो रोजा जाता रहा, और हैज से पूरे 10 दिन रात में पाक हुई तो बहरहाल कल का रोजा रखे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर नापाक हो गई तो फिर फौरन उसका रोजा टूट गया, और ये जो नापाकी के अय्याम हैं इनमें जिन रोजों को उसने छोड़ा है फिर इन रोजों की वो आखिर में कज़ा करेगी, रमजान के बाद कज़ा करेगी। अगर रोजों को कज़ा नहीं करेगी तो फिर वो गुनहगार होगी, क्योंकि रोजों की कज़ा जरूरी है। अलबत्ता नमाजों के मामले में शरीयत ने औरत को रुख्सत दी है कि नमाजें उससे वो जो नापाकी की हालतें में गुजरी वो नमाजें मुआफ हो सकती हैं, लेकिन रोजा मुआफ नहीं होगा। तो इसीलिए हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि सही मसाइल जानकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को सही मसाइल जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें शरीयत का इल्म अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।